हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं हूं सुमित और मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट खुशी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हेलो सर। तो सर हमारे क्लासिफिकेशन के फर्स्ट सॉइल एलुवियल सॉइल से स्टार्ट करते हैं। एलुवियल सॉइल्स, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna, and the Kaveri rivers. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt, and clay. As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the valley, that is, near the place of the break of slope, the soils are porous. Such soils are more common in Piedmont plains, such as Dwars, Kos, and Terai. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, that is Bhangar, and new alluvial, that is Khadar. The Bhangar soil has higher concentration of conker nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bhangar. Alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly, these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. इस टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट सॉइल के बारे में बोला गया है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल, जो हमारे देश की नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान और गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जैसे महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टास में पाए जाते हैं। ये सॉइल ज्यादातर हिमालयन रिवर्स जैसे गंगा, इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र की डिपोजिट से होता है। इसीलिए इस सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले मिलता है। लेकिन पिडीमोंट प्लेन्स जैसे डूअर्स, कोस, तेराई में एलुवियल सॉइल कोर्स होता है। अगर क्लासिफिकेशन के बारे में सोचे तो एलुवियल सॉइल को एज के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बंगर, जिसमें छोटे छोटे कंकर का मिलावट होने से ये कम फर्टाइल होता है, और दूसरा होता है खादर सॉइल, जो बंगार से ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि उसपे फाइन पार्टिकल होता है। अगर इसके दूसरे साइड में जाए तो देखते हैं कि एलुवियल सॉइल में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड जैसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो सुगर केन, वेट, पेडी और अदर सेरल क्रॉप्स को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि एलुवियल सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा है, इसीलिए जिन रीजियंस में ये सॉइल पाया जाता है वो इंटेंसली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड होता है। लेकिन ड्रायर एरियाज में एलुवियल सॉइल एल्कलाइन होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो इन रीजियंस में भी एलुवियल सॉइल को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। सर, हमारे क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप है ब्लैक सॉइल। These soils are black in color and are also known as Ragur soil. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Trap, that is basalt region, spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, and extend in the southeast direction along the Godavari and the Krishna valleys. The black soils are made up of extremely fine, that is clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric content.
They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. बेसिकली ब्लैक सॉयल को रेगुड सॉयल भी बोला जाता है और इस सॉयल को ज्यादातर कॉटन ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोला जाता है। माना जाता है कि क्लाइमेट कंडीशन के साथ साथ पेरेंट रॉक मटेरियल ब्लैक सॉयल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो ब्लैक सॉयल है ये डेक्कन प्लेट्यू के बेसल्ट रीजन में पाया जाता है और लावा फ्लो से भी बनता है। ये महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, कुछ साउथ ईस्ट डायरेक्शंस और कृष्णा वैलीज में ये ब्लैक सॉयल ज्यादातर पाया जाता है। इस सॉइल की कुछ खासियत है, जैसे कि इस पे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। ये ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बनता है। इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, लाइम बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि इस सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट ना होने की वजह से ये हॉट वेदर में डीप क्रैक्स इस पे पड़ जाता है, जिसके कारण इस सॉइल की प्रॉपर एरिएशन में मदद होता है। इस सॉइल को फर्स्ट शावर या प्री मॉनसून से पहले अच्छे से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये सॉइल गीले मौसम में स्टिकी हो जाता है। मतलब इसको कल्टीवेशन के लिए रेडी करना पड़ता है। सर, हमारी क्लासिफिकेशन का थर्ड सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल्स. रेड सॉइल develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain, and along the Pittman zone of the Western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. रेड सॉइल बेसिकली क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे डेवलप होता है। ये सॉइल रेड होता है क्योंकि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन का डिफ्यूजन होता है। लेकिन कभी कभी ये सॉइल येलो भी होता है क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है। ज्यादातर ये सॉइल उस एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे रेनफॉल होता ही नहीं है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स में। इंडिया में येलो एंड रेड सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट जोन में पाया जाता है। सर, हमारे क्लासिफिकेशन का फोर्थ पॉइंट है लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट हैव बीन derived from the Latin word later, which means brick. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Lateritic soils are mostly deep to very deep, acidic, that is pH less than 6.0, generally deficient in plant nutrients, and occur mostly in southern states, western Ghat regions of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal, and northeast regions. Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. लेटरेट वर्ड बेसिकली लेटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। ये सॉइल हेवी रेन्स की वजह से लीचिंग हो जाता है। इस सॉइल में कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि इसका पीएच लेवल एसिडिक होता है जो लेस देन 6.0 है, और इस सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी रहता है। ये सॉइल साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे एवरग्रीन और डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है। वहाँ पे जनरली लेटरेट सॉइल ह्यूमस रिच होता है। जहाँ पे सेमी एरिड
एनवायरनमेंट हो और स्पार्स वेजिटेशन होता है, वहाँ पे इस सॉइल की ह्यूमस पोर होता है। ये सॉइल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में जनरली टी और कॉफ़ी ग्रो करने में यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अच्छे से सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में रेड लेटेराइट सॉइल कैशियो नट ग्रो करने के लिए यूज़फुल होता है। सर, हमारे क्लासिफिकेशन का फिफ्थ सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. यहाँ पे जो एरिड सॉइल के बारे में बोला गया है, वो कलर में रेड या ब्राउन भी होता है और इसका टेक्सचर जनरली सैंडी होता है और उसका नेचर होता है सेलाइन। कुछ एरियाज में सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पहले वाटर को इवापोरेट किया जाता है ताकि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जा सके। एरिड रीजन में ड्राई क्लाइमेट की वजह से इवापोरेशन जो है वो बहुत ही फस्टर होता है, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस पोर हो जाता है और इसका मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ही कम हो जाता है। एरिड सॉइल की लोअर होराइजन में कैल्शियम कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए लोअर होराइजन में कंकर पाया जाता है और जिसकी वजह से वाटर का इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो इस सॉइल को कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। सर, हमारे क्लासिफिकेशन का लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल्स. These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. The soil's texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse-grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soils found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. ये फॉरेस्ट सॉइल हिली एंड माउंटेनस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है और इसका टेक्सचर माउंटेन के एनवायरनमेंट के ऊपर वेरी करता है। इस सॉइल की खासियत है कि ये वैली रीजन्स में लोमी और सिल्टी होता है और अपर स्लोप्स में कोर्स होता है। हिमालयन रीजन्स में स्नो की वजह से फॉरेस्ट सॉइल डिन्यूडेशन एक्सपीरियंस मतलब एक्सेसिव आइस की वजह से सॉइल का वेदरिंग मतलब सॉइल में क्रैक्स होने लगता है। जनरली ये सॉइल एसिडिक होता है और इसका ह्यूमस कंटेंट भी लो होता है, लेकिन ये सॉइल रिवर टेरिस और एलुवियल फैंस पे फर्टाइल मिलता है। सर, यहाँ तो टॉपिक खत्म हो रहा है. क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं? हाँ,